Hello students, so we are going to start our next chapter, that is Indian Economy 1950-1990. We start this chapter with the introductory part, that is on 15th of August 1947. India woke to a new dawn of freedom. Finally, we were master of our own destiny. After some 200 years of British rule, the job of nation building was now in our own hands. The leaders of the independent India had to decide, among the other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. Means 1947, 15th of August, we got the freedom from the British era, right? Colonialism system finish हुआ, हम लोग independent हुए. Now अब हमारे हाथ में अपनी कंट्री की डेस्टिनी थी कि अपनी कंट्री का इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम हम कैसे ठीक करें. There are different type of economic system, and among them socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most. यदि हम उस पीरियड में देखें तो टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम वर रनिंग ओवर देयर. वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. और उस पीरियड में हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको सोशलिस्ट इकोनॉमी थोड़ी सूट कर रही थी, समझ में आ रही थी. However, he was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is, all the factories and the firm in the country were owned by the government. उन्हें समझ में आ रही थी कैपिटलिस्ट के मुकाबले कंपेयर में सोशलिज्म, लेकिन वो उसके पूरे फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सोशलिज्म इकोनॉमी रशिया में देखी हुई थी, और रशिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन था वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में था, तो उन्हें ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था. There was no private property, और वहां पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो जवाहरलाल नेहरू को ये समझ में नहीं आ रहा था. अब there was no private property and it was not possible in democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizens in the way that it was done in the former Soviet Union. सोवियत यूनियन में जो भी लैंड रिफॉर्म्स था, लैंड का ओनरशिप था, सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में था. तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन जैसा पैटर्न हमारी इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में हो, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहते थे, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस चाहते थे. So Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme version of capitalism and socialism. तो नेहरू और जो अदर लीडर्स थे, जो इकोनॉमिक्स थे, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें थोड़े से एसेट्स, थोड़े से मेरिट्स एंड थोड़ी से मेरिट्स सोशलिज्म के और कुछ मेरिट कैपिटलिज्म को लेकर एक नई इकोनॉमी क्रिएट करनी चाहिए. दे फाउंड answer of an economic system which in their view combined the best feature of socialism without its drawback. अब उन्हें कैपिटलिस्ट का भी मेरिट चाहिए था और सोशलिज्म का भी मेरिट उन्होंने लिया. वो ड्रॉबैक जो सोशलिज्म कंट्री में थे वो लेना नहीं चाहते थे. In this view, India would be a socialist society with a strong public sector, but also with the private property and democracy. अब जब उन्होंने थोड़ा सा मेरिट सोशलिज्म का लिया, थोड़ा सा मेरिट उन्होंने कैपिटलिज्म का लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास पब्लिक सेक्टर भी होंगे और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से हम प्लान कर पाएंगे फॉर for the economy with the private sector being encouraged to be part of plan efforts. अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स थे और उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम पब्लिक भी रखेंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी रखेंगे और हमारा ये प्लान इस तरह से आगे बढ़ेगा. The Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principle of Indian Constitution reflected the outlook. In 1950, the Planning Commission was set up with the Prime Minister and as its chairperson. The era of 5-year plan had begun. 1915 में Planning Commission बना.
जिसका चेयरपर्सन कहा गया प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और 5-year प्लान्स हमने डिसाइड किया कि बनाना हम स्टार्ट करेंगे। Now the next topic is the goals of 5-year plans. ये डिसाइड किया गया जब प्लानिंग कमीशन ने कि हमारे अपने एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम क्यों बना रहे हैं, और एक हमारे गोल्स भी रहेंगे, हर प्लान का अपना एक डिफरेंट गोल होगा। The plan should have some clearly specific goals. The goals of 5-year plans were growth, modernization, self-reliance and equity. हम किस पे काम करेंगे? सबसे पहला हमारा 5-year plans का हमें देश को ग्रोथ देना है। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना है और आगे बढ़ना है। सेल्फ रिलायंस बनना है, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो रहे, हम किसी पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, हम अपनी कोशिश करेंगे कि सेल्फ रिलायंस हो, अपनी नीड को खुद फुलफिल कर सके। इक्विटी, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे कि सब लोगों का डेवलपमेंट, रहने वाले सभी कंट्री के सिटीजन्स का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो सके। This does not mean that all the plan have given equal importance to all these goals, because they are going to target the equity word, not the equality. तो एक साथ डेवलपमेंट नहीं देंगे, कोशिश करेंगे सबका डेवलपमेंट हो। Now, due to limited resource, a choice has to be made in each plan, which about the goal is to be given primary importance. Nevertheless, the planner have to ensure that as far as possible, the policy of plan do not contradict these 4 goals. Let us now learn about the goals and planning. यहाँ पर डिसाइड किया गया जब भी हम 5-year plans बनाएंगे, हर 5-year प्लान्स का डिफरेंट गोल होगा। हर में हम एक ही को लेके नहीं चलेंगे, किसी को टारगेट लेके चलेंगे। हर एक गोल का प्राइमरी गोल होगा, उस प्राइमरी गोल को ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं और गोल्स की प्लानिंग देखते हैं। पहला था ग्रोथ। इन्होंने कहा हम देश को ग्रोथ देंगे, तो ग्रोथ कैसे देंगे? इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। इट इम्प्लाइज नाइदर a larger stock of productive capital or a larger size of supporting service like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services. A good indicator of economic growth is the language economics steadily increase in the gross domestic product. तो इन्होंने क्या कहा? हम जीडीपी में ग्रोथ देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करेंगे और एक साथ जीडीपी की ग्रोथ पे काम करेंगे। द जीडीपी इज द we can say GDP is gross domestic product, or production also you can say, or income also you can say, and the GDP is the market value of all goods, and you can underline this word, the market value of all goods and services produced in the country during a year. Now, you can think of GDP as a cake and growth is increase in the size of the cake. कि इन्होंने कहा एक केक समझ लो, केक है और उसकी साइज हमें इंक्रीज करनी है हर हाल में। If the cake is larger, more people can enjoy. जैसा केक बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतने लोगों को मजा आएगा, फायदा मिलेगा। तो इसी तरह जीडीपी जितनी ग्रोथ होगी, कंट्री में रहने वाले सभी सिटीजन्स का प्रॉफिट होगा और ग्रोथ होगा। It is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy a more rich and varied life. नेचुरल सी बात है, यदि जीडीपी का ग्रोथ ज्यादा होगा तो ज्यादा लोग रिच हो जाएंगे और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी वेरीड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। Now the GDP of country is derived from the different sector of the economy. हमारे यहाँ बहुत सारा अभी स्ट्रक्चर कंपोजिशन भी आ रहा है। हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर है जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसे सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है, एंड द थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर जिसे टर्शरी सेक्टर भी कहा जाता है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर मेक्स अप द स्ट्रक्चर। इन तीनों में जो भी कंपोजिशन बनता है, जो भी ग्रोथ आता है तीनों सेक्टर्स को, तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मिलकर देता है। In some country, growth of the agriculture contribution more to the GDP growth value is some country that growth in the service sector contribute more to GDP.
अब इन्होंने कहा तीनों सेक्टर में जो ग्रोथ आएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो तो भी हमारे देश को ग्रोथ मिलेगी, और यदि हम दूसरी कंट्री की बात करें तो ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में, और कंट्रीज में देखते हैं सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन देता है। Now, the first thing is हमारा क्या मोटिव था? ग्रोथ का। The second one is modernization. Modernization क्या था? To increase the production of goods and services. The producer have to opt new technology. For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seed variety instead of using the old one. अभी हमने कहा मॉडर्नाइजेशन को ऑप्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी हम ओल्ड टेक्निक को छोड़कर नई टेक्निक की तरफ मूवमेंट करें। जैसे जैसे हम नए हमारे फार्मर्स नई आउटपुट न्यू सीड्स वैरायटी को यूज करते हैं और ओल्ड को छोड़ते चले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह फैक्ट्रीज में भी हम ओल्ड आउटडेटेड मशीन को छोड़ के नई अपडेटेड मशीन को यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. New technology is called modernization. However, the modernization does not refer only to the use of new technology, but also to change in social outlook, such as the recognition that women should have the same right as men. In traditional society, women are supposed to remain at home while men work. A modern society make use of talents of women in the workplace, in bank, factories, schools. Such a society in most occasions is also prosperous. इन्होंने कहा जैसे मॉडर्नाइजेशन को ऑप्ट करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओनली टू यूज ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ओल्ड थॉट्स को भी यूज करना है, आउटलुक हमें ध्यान में रखना है। हम जैसे पहले फीमेल्स को आगे नहीं बढ़ने देते थे, अब हमें उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है क्योंकि उनमें भी टैलेंट हो सकता है। तो मॉडर्नाइजेशन अपने थॉट अपने आउटलुक को भी बदलना है। द थर्ड हमारा आउटलुक था, हमारा मोटिव था 5-year प्लान का, सेल्फ रिलायंस। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resource or by using resources imported for the nation. The first 7-year plans gave importance to the self-reliance. Underline this line word कि self-reliance हमने 7th plan में इसको रखा था कि हम अब 7th plan में अब हम लोग self-reliance हो जाएंगे। उसमें हमने ज्यादा फोकस किया था, avoiding import of those goods which could be प्रोड्यूस इन इंडियन इटसेल्फ। जब वो प्रोडक्ट हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ट्राई करें। दिस पॉलिसी वाज कंसीडर्ड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली फॉर गुड। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू से। हम लोग अभी तक फॉरेन डोमिनेशन पे थे, उनके कहे पे चलते थे। अब हमारी था कि हम अपनी डेस्टिनी अपनी कंट्री की खुद तय कर रहे थे, हमारे हाथ में था। तो अब सेल्फ रिलायंस होंगे, हमारी जो नीड है उसे कोशिश करेंगे यहाँ प्रोडक्शन करने की। फॉर दैट वाज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स वाज सप्लाइज। Foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policy. हमें पहले डर था कि कहीं हम foreign policies को अंदर enter करते हैं तो कहीं हमें फिर से dominated नहीं होना पड़े, तो इस डर से हमने बाहर की countries से restrictions रखा और self reliance होने की कोशिश की। हमारा 5वां मोटिव था equity. Now ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ये 3 चीजें हमने देख ली। बाय देमसेल्फ मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ। इससे मॉडर्नाइजेशन होना यानी सबका ग्रोथ ना होना, सेल्फ रिलायंस का भी मतलब ग्रोथ का भी मतलब ये नहीं कह रहे हैं सबकी लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव हो जाए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी पे। तो कंट्री कैन हैव बिग ग्रोथ द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ। यदि हम टेक्नोलॉजी जो मोस्टली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ हो, and also have most of the people living in the poverty. हम यदि देखते हैं कि बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो फिर क्या फायदा। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गवर्नमेंट जो भी अवेलेबल करा रहा है वो मैक्सिमम की रीच तक पहुंचे, ऐसा ना हो ओनली रिच पीपल एंजॉय द मॉडर्नाइजेशन। So, in addition to growth, modernization and self-reliance, equity is also important. इन्होंने कहा जहां modernization होना चाहिए, man women को old technique को छोड़कर, old orthodox things को छोड़कर, thoughts को छोड़कर, सेल्फ रिलायंस इंपोर्ट को छोड़कर, यदि हम इन चीजों को छोड़कर सब्स्टिट्यूशन पे अपना बिलीव कर रहे हैं,
न्यू टेक्नोलॉजी आउटलुक बदल रहे हैं, तो इक्विटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी. एवरी इंडियन शुड एबल टू meet his or her basic needs such as food, recent house, education and healthcare, and equity in the distribution of wealth should be reduced. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं हम